वेद्यं पवित्र ओंकारं ऋक्साम यजुरेव च। वेद्यं पवित्रमोङ्कारं विद्वासाम्यतिरेव च। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारं विद्वासाम्यतिरेव च। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तात्पर्य: सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियम को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। Okay, so anyone like to share something? Hardik Prabhu. Hare Krishna, bro. Dandavatana. Yes. Yes, bro. Yes, bro. Here Krishna says, I'm the father of this universe, the mother, support, and the grandson. So Srila Prabhupada gives this example like if we go towards the progressive stage, our father is, we know our father. Like that, if we go from father to father and father, we will ultimately reach to Lord Brahma. And that Lord Brahma is father is Narayan ultimately. So Krishna is saying that I'm the father of this universe in that way. And he is also the grandson, means Pitamaha. So we generally refer Lord Brahma as Pitamaha, but Krishna is known as Prapitamaha. So that means, yes, Prabhuji, that word Prapitamaha. So the father is grandfather is also Krishna. So actually in this verse, Krishna says how much he is to us. So here we are getting generally we get protection from the father and love and care from the mother, and we also get love from our grandfather. So Krishna is saying that I am only you are getting that love only from me, but not directly, but indirectly through father, mother, and grandfather. And here Krishna is saying, I'm the object of knowledge. Krishna says in the 15th chapter that he is the knower, he is to be known by the Vedas. Vedasya sarva ahamamya vedya, and also the syllable Om. So we know how Om is also very important in each and every mantra which is mentioned in the scriptures there. And Krishna says Pranava Sarva Vedeshu. So he is also the Om in that. And he is saying that if someone says we only focus on Vedas, not Bhagavad Gita, but here Krishna is saying I'm also the Rig, Sama and Yajurveda. So here Srila Prabhupada also mentions that not only our father and mother are part and parcel of Krishna, but the creator, grandmother and grandfather also Krishna. So in this way, everyone is Krishna, and the supporter of this universe is also Krishna. So in this verse, I only understand that everything is Krishna. The moving and non-moving, manifested and non-manifested, the father and mother, everyone is part and parcel of Krishna. And because they're part and parcel of Krishna, that is what their aim should be only to satisfy Krishna. So Srila Prabhupada gives that plant and root example like Prabhuji, and also the stomach example. So in essence, I understood that if we just serve Krishna, then automatically our duties towards our father and mother will be automatically fulfilled. So if I'm wrong, please correct me. Okay. Thank you so much, Hardik Prabhu. Yes. Anyone else?
नहीं, ओके, ठीक है। तो शुरू करने से पहले है ना, अभी हमारे बीच में हिज ग्रेस साधु हृदय प्रभु जी भी हैं, तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे। एंड सो क्योंकि समय थोड़ा कम है ना, तो मैं स्पीड में आगे बढ़ूंगा। तो आगे के पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था अहम क्रतुरहम यज्ञ ना, भगवान बता रहे थे अर्जुन को, जय है ना। सो भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को जान देने वाला तर्पण हूँ। तो भगवान ने 8 चीजें बताई थी कि यज्ञ भी मैं हूँ, यज्ञ जिसके लिए होता है वो भी मैं हूँ, और यज्ञ की जो सामग्री है वो भी मैं हूँ, है ना। तो यज्ञ का सब कुछ मैं हूँ। इसलिए जो यज्ञ के द्वारा ज्ञान का अनुशीलन करते हैं छायावादी, मायावादी, कायावादी, आर्य लोग, वो जो कोई भी है, वो सब यज्ञ मैं हूँ, चाहे वो जाने या ना जाने, लेकिन वो मेरे द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे अब सवाल खड़ा हो सकता है कि आप कौन हो, हम तो नहीं जानते आपको, है ना। तो भगवान अब 8 चीजें ये आज के श्लोक में बताते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि पिता अहम अस्य, है ना, कि मैं पिता हूँ। तो अब एक एक चीज को हम लेकर के चलेंगे। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, है ना। और जब यूनिवर्स बोल देते हैं कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का हूँ, है ना, तो इसमें सभी लिविंग एंटिटीज आ जाते हैं जितने भी हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोरोना वायरस हो, है ना, ह्यूमन हो, कोई भी हो। तो उन सबके पिता भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। अब अगर हम इसको तत्व की दृष्टि से देखें, तो भी जैसा हम कुछ दिन पहले से 8वें अध्याय से ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे चतुष कुमार और उनसे पहले ब्रह्मा जी, है ना, और नारद मुनि, तो सबसे ऊपर अगर चलते जाए, जैसे अभी हार्दिक प्रभु बता रहे थे, तो हम ब्रह्मा जी पर पहुंचेंगे। और वो ब्रह्मा जी जब खुद कमल नाल से, पद्मनाभ, है ना, भगवान विष्णु से पैदा होते हैं, तो वो जब कमल नाभ पर निकलते हैं तो सोचते हैं व्हाट इज दिस, है ना, ये क्या है, हर तरफ कुछ दिख नहीं रहा, सिवाय कमल का फूल नीचे जा रहा है। और ऐसा कई कई पुराण आदि में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी वो कमल के फूल पे पकड़ के नीचे उतरने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है, बट वो कई कई हजारों सालों तक नीचे उतरते रहते हैं, लेकिन उनको सोर्स नहीं मिलता उस कमल के फूल का। तो फिर वो प्रार्थना करते हैं, है ना, कि आप जो भी एक कमल का फूल जहाँ से भी सोर्स निकल रहा है ना, वो आदि भगवान कृपया करके मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। तब भगवान विष्णु उनको दिखाते हैं कि मैं, है ना, आई एम दी, जैसे अभी हार्दिक प्रभु बता रहे थे कि हम पितामह के रूप में ब्रह्मा जी को जानते हैं, लेकिन भगवान विष्णु या कृष्ण प्रपितामह है ना। तो इसलिए तत्व की दृष्टि से भी, चाहे वो कितने पिता के पिता के पिता के पिता करते करते हम ब्रह्मा जी तक पहुंचेंगे, और उससे ऊपर भी जाए तो नारायण कृष्ण तक पहुंचेंगे। तो कृष्णा से बलराम जी, और बलराम जी से फिर आगे सब मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर हम तत्व के अलावा रस की दृष्टि से भी देखें तो भगवान पिता स्वरूप में सब कुछ हैंडल करते हैं। जैसे इस जगत में जो पिता होते हैं, तो वो बच्चे की सारी रखवाली करते हैं सॉरी, जैसे कोई बच्चा है, उसके ट्यूशन का खर्चा, उसको कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, उसको कौन से टीचर के पास भेजना है, उसको खाना कौन सा देना है, वो बीमार हो गया तो उसको कौन से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना है, उसको कौन सी अच्छी से अच्छी मेडिसिन देनी है। और जैसे यहाँ पे भगवान माता पिता की बात करते हैं, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो डिस्कशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कई बार मुझे भी कई लोग मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि हम क्यों भगवान की भक्ति करें। मैं भी पहले भगवान को मानता था, पर भगवान ने मेरे साथ ऐसा बहुत बुरा करा, है ना। तो भगवान बुरा करते हैं तो यानी वो भगवान नहीं है ना। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से इस जगत के माता पिता को भी देखें, तो वो सारी चीज़ें हमारी इच्छा अनुसार तो नहीं करेंगे कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, हमारे साथ ऐसा हो, है ना। हमारे माता पिता नहीं करेंगे, तभी तो भगवान कहते हैं कि अगर कुछ मांगना भी है तो डायरेक्ट उनसे मांगना चाहिए, देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माता पिता नहीं है ना। अगर किसी पड़ोसी से हम कुछ मांगे, तो वो ध्यान क्यों रखेगा हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, वो तो दे देगा कि ठीक है लो, है ना। लेकिन अगर हम अपने खुद के माता पिता से मांगे, तो वो एक्चुअल में हमारी केयर करेंगे कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। इसलिए हम कितना भी रोए, कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, भगवान हमें वही प्रदान करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए सबसे पहले कहते कि मैं पिता हूँ। और कई कई श्लोकों में भगवान कहते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, लेकिन सिर्फ बीज प्रदाता पिता नहीं, है ना, क्योंकि आई एम द सीड गिविंग फादर। जैसे शास्त्रों में बताया गया कि एक जीव आत्मा मृत्यु पश्चात, है ना, मृत्यु पश्चात एक जीव आत्मा जैसे अगर स्वर्ग में गई, तो नर्क से जाने का फिर अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर स्वर्ग में गई, तो फिर स्वर्ग में वहाँ पे समय पूरा होने के बाद उसको बादलों में गिरा जाता है। फिर वहाँ बादलों से वो वर्षा के रूप में नीचे आता है, फिर वो अन्न के अंदर चला जाता है जीवात्मा।
और फिर जब उसको एक पुरुष खाता है तो वो जीवात्मा फिर सीमन में चला जाता है, एंड देन इट ट्रांसफर टू मदर्स बॉडी, एंड तब वो फीटस बन के फिर बाहर बेबी बन के बाहर आता है। तो अलग अलग तरीक़ों से ऐसे होता है ना। तो इसलिए जो बीज प्रदाता पिता है वो तो भगवान ही है ना। किसी लैबोरेटरी में हम जाके कोई जीवात्मा क्रिएट नहीं कर सकते, इवन बॉडी तक नहीं क्रिएट कर सकते, फिर सोल और कॉन्शियसनेस की तो दूर की बात है। तो इसलिए भगवान ही सीड गिविंग फादर है। और सिर्फ सीड गिविंग फादर नहीं है, भगवान पिता जिस प्रकार से सब कुछ भरण पोषण लालन पालन सब कुछ करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी करते हैं। और कितने श्लोकों में बताते हैं कि योगक्षेम अवहाम्य हम, है ना, कि मैं ध्यान रखता हूँ। तो इस जगत में जो पिता है, इस जगत में जो पेरेंट्स है, वो लिमिटेड है, वो कितना कर सकते हैं, लेकिन भगवान अनलिमिटेड है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं और पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो जैसे एक और चीज़ है ना, इसमें तात्पर्य में काफ़ी मुझे अच्छी लगी कि शिला प्रभुपाद कितनी बार इसमें कृष्ण 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 कर रहे हैं, है ना। मतलब सामान्य रूप से अगर कोई और होते तो मे बी वो भगवान भी लिख सकते थे, भाई एक बार कृष्ण लिख दिया। जैसे ग्रामर में नाउन्स एंड प्रोनाउंस होते हैं ना, कि नाम लिख दिया बट उसके बाद वह, है ना, वह करते हैं या फिर भगवान करते हैं, ये भी बोल सकते थे। लेकिन प्रभुपाद बार बार कृष्ण 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 लिखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हाउ मच अटैच शिला प्रभुपाद इज टू कृष्णा, है ना, और कितना प्रेम है उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति। और वो ये भी चाहते हैं, है ना, कि जब हम बार बार पढ़े तो हमारे मुख से भी बार बार कृष्ण उच्चारण हो, है ना। तो मैं तो काउंटिंग भूल जाऊंगा कितनी बार तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने कृष्णा बोला है ना। सो और यही कृष्णा, है ना, हमारा सबका ध्यान भी रखते हैं। और जैसे भगवान अभी आगे बोलेंगे कि समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय, है ना, कि मैं सभी के प्रति समान हूँ, मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ और ना मैं किसी से मित्रता करता हूँ, है ना। लेकिन अब भगवान ये पार्शियलिटी नहीं भी करते और करते भी हैं, है ना। एक्चुअली नहीं करते, क्योंकि जैसे वर्षा तो हर जगह पे हो रही है ना, कृष्णा प्रभु अभी मैं बता रहा हूँ, है ना, कैसे। क्योंकि कुंती महारानी भी यही सेम चीज़ श्रीमद् भागवतम के अंदर बोलती है ना, कि भगवान आप किसी से पक्षपात नहीं करते। लेकिन वो किस प्रकार है, जैसे वर्षा हर जगह पे होती है, बादल कभी किसी से पार्शियलिटी नहीं करते कि मैं नारायण प्रभु के घर में बारिश करूँगा लेकिन हार्दिक प्रभु के घर में बारिश नहीं करूँगा, है ना, ऐसा कभी नहीं करते। या उनके ऊपर करूँगा उनके ऊपर नहीं करूँगा। लेकिन अगर हम ही अपने ऊपर छाता लगा ले और फिर बोले कि मेरे ऊपर तो बारिश हो ही नहीं रही, सो व्हाट कैन क्लाउड्स डू, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान सभी के ऊपर अपनी कृपा रूपी वर्षा करते हैं। लेकिन अगर हम ही अपने ऊपर अपनी इच्छाओं का, भौतिक इच्छाओं रूपी छाता लगा देंगे या उनसे भागना चाहेंगे, तो भगवान क्या कर सकते हैं। और हर जगह सामान्य वर्षा हो रही है, लेकिन अगर हम ही, है ना, एक सेब का पेड़ है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पेड़ में से आम निकलेंगे, है ना। तो इसलिए जिस चीज़ का पेड़ है वही निकलेगा। अगर नीम का पेड़ है तो नीम के पत्ते ही निकलेंगे, है ना, उसमें से आम नहीं निकल सकता। तो जैसे हम है वैसा ही होगा। इसीलिए भगवान तो हर जगह सेम ही वर्षा करते हैं, लेकिन अभी हमारे ऊपर है ना, कि हम क्या करते हैं। तो इसलिए भगवान भी यही बताना चाहते हैं कि पिता रूप में जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका भी भगवान ध्यान रखते हैं। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि श्रीपाद आइंद्र प्रभु बताते हैं कि भगवान तो एक काली अंधियारी रात में काले कुएं के अंदर, और उसके अंदर जो काला पत्थर है उसके अंदर काले छेद में, काले अंधेरे में जो एक काली चींटी है, उसका ध्यान भी भगवान रखते हैं। तो फिर हम तो मनुष्य शरीर में है और उस मनुष्य शरीर में रहकर भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान ब्रह्मांड के पिता हैं तत्व की दृष्टि से भी, और हमारा ध्यान भी रखते हैं, धारण करते हैं, सब कुछ पालन पोषण लालन पालन सब करते हैं। और जब हम भक्ति में आते हैं तब तो हम इसको और ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं हमें भगवान का हाथ दिखना शुरू हो जाता है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि अगर अगर भगवान ने मुझे शिला प्रभुपाद नहीं दिए होते तो मैं क्या करता, है ना। अगर उन्होंने इस जगत में शिला प्रभुपाद को नहीं भेजा होता तो मेरी क्या गति होती। ना मंदिर होते, ना हरिनाम हो रहा होता, ना संकीर्तन हो रहा होता, ना प्रसाद होता, और ना ये वैदिक नॉलेज पता चलती, ना इतने सारे लिटरेचर्स होते, कुछ भी नहीं होता, है ना। सब कुछ वीरान जंगल, है ना। तो कैसे पता चलता सब कुछ। और उसके बाद भक्त दिए, इतने सारे ग्रंथ दिए, है ना। तो इत्यादि इत्यादि चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि मैं पिता ही नहीं माता भी हूँ, है ना। कोई बोले कि इस संसार में जो पिता होते हैं वो जैसे जो माता जी होते हैं कई बार उन्हें पिता अच्छे लगते हैं, और जो लड़के होते हैं, है ना, प्रभु जी, उन्हें कई बार माताएं अच्छी लगती है। तो भगवान दोनों ही कहते हैं। क्योंकि क्यों कहते हैं माता, है ना, तत्व की दृष्टि से ऐसा है कि
क्योंकि माता अपने शरीर में बच्चे को धारण भी करती है, तो भगवान विष्णु खुद ही कर लेते हैं ये सब, है ना। वो और किसी को पर्सनालिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, महाविष्णु खुद ही कर लेते हैं। अपने ही गर्भ में सारे जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है उन्हीं के गर्भ में जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर निकलते हैं। तो भगवान अपनी ही गर्भ में उन्हें धारण भी करते हैं, इसलिए कहते हैं कि मैं माता भी हूँ। और इस संसार में जितनी माताएं हैं उनके करोड़ों माँओं को मिला दे तो वो इतना प्रेम नहीं कर सकते जितना भगवान अकेले कर देते हैं। क्योंकि इस संसार में भी जो माता है ना, तीसरे स्कंद भागवत में भी बताया गया है कि किस प्रकार से एक जीवात्मा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो किस प्रकार से पुकारता है भगवान को कि बस एक बार मुझे यहाँ से निकाल दो, तो मैं बस आपका चिंतन मनन करूंगा। और जब वो बच्चा बाहर आता है तो कुछ खा नहीं सकता, है ना। अन्नप्राशन भी शायद 6 महीने बाद होता है ना, या 40 दिन बाद, है ना, ऐसे कुछ होता है। तो तब तक वो बच्चा क्या पिएगा, क्या खाएगा, क्या नहीं करेगा, है ना। उसको वो फुल क्रीम वाला दूध भी नहीं पिला सकते कि अमूल से लेकर आए और वो पिला दो, है ना। तो वो सिर्फ माँ का दूध जो है वो पी सकता है। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है ना, कि माता के ही शरीर में दुग्ध की व्यवस्था कर रखी है कि वहां से वो अपना पेट भर सकता है। और ये तो है बाहर निकलने के बाद, लेकिन जब तक वो गर्भ में तब तक कहाँ से खाना सप्लाई हो रहा था, है ना। तो जो माता खाती है वही अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू उस बच्चे तक सप्लाई होता है। फिर जब बाहर भी आ जाता है तो भगवान उसको, है ना, माता के शरीर में स्तन लगा कर देते हैं ताकि वो दुग्ध पान कर सके, है ना। और निपल्स लगा कर देते हैं ताकि वो सही से, क्योंकि दांत नहीं है, खा नहीं सकता नहीं है, तो ताकि सही से दुग्ध पान कर सके। इतना ध्यान माइन्यूट लेवल पर भगवान रखते हैं, है ना। और ये तो वो चीज़ है जो हमें थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं, है ना, भक्तों की कृपा से। लेकिन कितनी ऐसी चीज़ है जो हम अपनी बुद्धि से पकड़ भी नहीं सकते कि भगवान कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारा ध्यान रखते हैं। तो माता की तरह स्नेह भी करते हैं। जैसे कई बार महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप माता से बोलो कि मम्मा मम्मा मुझे दूध चाहिए, है ना, और आप कितना भी रो, लेकिन अगर दूध बहुत ज़्यादा गर्म है तो माता नहीं देगी, है ना। चाहे आप कितना ही दीवार में सर मारो, है ना। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि मेरे पास महाप्रभु नहीं है और मैं क्या करूँ, वो गौर नटवर गौरांग कहाँ गए, मैं दीवार में सर मारूँ, पाषाण में सर मारूँ, या आग में कूद जाऊँ। तो ऐसी हालत हमारी हमारी भौतिक इच्छाओं की वजह से होती है कि मेरी भौतिक इच्छा पूरी नहीं हो रही, है ना, मेरा जेई नीट क्लियर नहीं हो रहा, मुझे एक सुंदर स्त्री नहीं मिल रही, मुझे अपनी जितनी धनराशि मुझे चाहिए थी उतनी मुझे मिल नहीं रही, क्या करूं, पाषाण में सर मारूं। को लोग सच में करते भी हैं, है ना। जैसे ब्रेकअप हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो दीवार में सर मारने लग जाते हैं, ऐसे उससे कुछ हो जाएगा, है ना। तो पाषाण में सर मारूं या आग में कूद जाओ, भी एक हमारी स्थिति महाप्रभु के विरह में नहीं है। ये स्थिति हमारी भौतिक आसक्तियों के विरह में है ना, क्योंकि वो आसक्ति जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए भगवान माता की तरह केयर भी करते हैं, स्नेह भी देते हैं, है ना। और स्नेह का मतलब ये नहीं है कि जो मांगेंगे वो दे देंगे, नहीं, है ना। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसे नहीं भी देंगे, है ना। और अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो पनिश भी करेंगे, है ना। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं और वो बोले मुझे पार्क में खेलने जाना है, तो मम्मी नहीं जाने देगी, है ना। लेकिन वो बोले कि मम्मी मैं अभी पढ़ाई कर लूंगा और उसके बाद आके बाद में सॉरी, है ना, पहले पढ़ लेता हूँ या बाद में आके पढ़ लूंगा, और थोड़ी देर जाने दो, बस आधा घंटा खेलने दो, है ना। तब मम्मी कहती ठीक है चलो आधा घंटा, लेकिन सिर्फ आधा घंटा, लेकिन ज़्यादा किया तो डांटेगी भी। इसी प्रकार से जब कोई भक्ति में होता है ना। मैं आपको कितनी बार ये एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन जैसे मेरे जैसे जो जीवात्मा है ना, जो नए नए भक्ति में आते हैं, तो कई बार कुछ भौतिक इच्छाएं मानसिक लेवल पर रह जाती हैं। कई कभार छूट छोटी मोटी भी होती हैं कि यार आज ना ये वाला प्रसाद खाने का मन करता है ना। और कई बार ऐसा लगता है किसी को नहीं बताया, है ना, लेकिन बिना बताए वो भगवान सप्लाई कर देते हैं और फिर लगता है ओ माय कृष्णा, है ना, व्हाट इज दिस, ये तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था, ये कैसे हो गया, है ना। जैसे मैं कई बार रियल एग्जाम्पल भी बताएं कि घर पे ही कई बार ऐसा हो जाता है ना, कि नहीं बताया कि ये प्रसाद चाहिए, बट अपने आप हो जाता है ना। सो देयर आर ट्रेमेंडस एग्जाम्पल्स, ना, चाहे भक्ति कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो ना, जीव आत्मा कुछ भी इच्छा करते हो, खासकर भक्ति करते हुए अगर वो इच्छा करते हैं तो भगवान वो छोटी मोटी इच्छा भी पूरी कर देते हैं, है ना। कि ठीक है अब ये थोड़ा प्रजल्प करना चाहता है, ठीक है ना, ओके। तो है ना, अलग अलग प्रकार से भगवान ध्यान रखते हैं। और फिर स्पिरिचुअल डिजायर्स, है ना, ये तो पूछो ही मत, है ना। स्पिरिचुअल डिजायर्स जब भगवान पूरी करने पे आते हैं तो सबको पीछे छोड़ देते हैं, है ना। आपको ग्रंथ चाहिए वो प्रदान करेंगे। एक ही चीज है भगवान जो बहुत रेयरली प्रदान करते हैं, क्या है वो, कई बार डिस्कस किया है हमने, हैंड रेस करेंगे सिर्फ। यस नारायण रू।
प्रभु जी, भगवान अपने शुद्ध भक्तों का संग नहीं देते जल्दी से। हाँ, है ना? तो भगवान सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों का संग सबसे लेट प्रदान करते हैं, है ना? जब तक हम रोएंगे नहीं, श्रील गौर गोविंद महाराज कहते हैं, जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक भगवान भक्तों का संग नहीं देंगे। और इसके लिए हम हर बार वो बहुत कॉमन सी और इजी सी एनालॉजी से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमारा क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल है, उसमें हम किसी स्ट्रेंजर को अचानक नहीं घुसाएंगे, पहले परीक्षण करेंगे, टेस्ट लेंगे कि ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। उसी प्रकार भगवान भी हम अपने क्लोज जो डिवोटीज का सर्कल है उसमें हमें नहीं घुसने देंगे, पहले देखेंगे कि सच में चाहता भी है भक्त बनना कि नहीं चाहता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो पहले पूरा परीक्षण करेंगे, पहले पूरा चेक करेंगे सच में मुझे चाहता है या मेरे वो मुखे बोले, है ना, या मुख से कह करके कुछ और चाहता है। तो जब तक पूरा परीक्षण नहीं करेंगे तब तक घुसने नहीं देंगे, है ना। इसलिए भगवान पहले इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन उस इंस्पेक्शन में भी हमें पास होना है ना। भगवान अगर हमारा टेस्ट ले तो हमें उस कसौटी को पार करके पास करना है ना। तो इसलिए भगवान पिता भी है, माता भी है, और पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ये नहीं कि हम जो मांगेंगे भगवान वो दे देंगे। तो इसलिए पिता माता धारण करते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं आश्रय हूँ, है ना। पिता हमस्य जगतो, जगत की पूरे पिता, और फिर माता भी हूँ और धाता भी हूँ, है ना, आश्रय। तो भगवान शेल्टर प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, है ना। और भगवान परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी को भी भेजते ताकि वो मैं भक्ति में आश्रय प्रदान कर सके। तो इसलिए भगवान आश्रय प्रदान करते हैं, और निश्चित रूप से भगवान ही एकमात्र हैं जो आश्रय प्रदान करते हैं, है ना। जैसे कितने ही भक्तों की कथा में हम देख सकते हैं, जैसे कल हम माधवेंद्र पुरी पाद के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो शिला माधवेंद्र पुरी पाद को भगवान कभी खीर चुरा कर देते हैं, और कभी वो कुछ और लेते नहीं थे तो कभी उनको खुद आकर दूध सप्लाई करते हैं, है ना। और कितने ही हमारे ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, है ना, जो जिनको भगवान खुद से आकर के सप्लाई करते हैं। जैसे हमने वो एक बार कृष्ण बलराम वाली स्टोरी सुनी थी, है ना, जब एक भक्त ने भगवत गीता में से काट दिया था कि नहीं नहीं, भगवान खुद थोड़ी ना ध्यान रखते हैं, किसी को भेज देते होंगे, खुद नहीं रखते होंगे, लेकिन कृष्णा बलराम खुद आकर उन्हें बोरियों में अनाज और दूध इत्यादि ये सब क्या क्या सप्लाई करते हैं। तो इसलिए भगवान आश्रय भी हैं, और चाहे कोई भक्ति कर रहा हो या नहीं, हम देखते हैं कि उसको खाना पानी ऑक्सीजन लव एंड केयर, है ना, सब कुछ भगवान सप्लाई करते हैं, है ना। माता पिता के थ्रू, मित्रों के थ्रू हमें सप्लाई करते हैं। तो एज अ डिवोटी कम से कम हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई हमारा मित्र है ना जो कि हमें बहुत ज़्यादा अफेक्शन दे रहा है, या कोई माता पिता है ना जो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्शन एंड केयर दे रहे हैं, पर जैसे हमें पता है भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि पहली बात उन्हें खाना पानी सब भगवान सप्लाई कर रहे हैं। उनके अंदर जो अहम पौरुषम ऋषु, उनके अंदर जो शक्ति है, संचार है, वो भगवान सप्लाई कर रहे हैं। उनके अंदर बुद्धि भगवान प्रदान कर रहे हैं, और स्मरण शक्ति विस्मरण शक्ति हमारे अंदर भी उनके अंदर भी वो भगवान प्रदान कर रहे हैं। उनको भी जो लव एंड केयर का सोर्स है, जो अल्टीमेट सोर्स है, वो भी भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई हमें लव एंड अफेक्शन दे रहा है तो हमें इस प्रकार से देखना चाहिए कि भगवान मुझे इसके थ्रू लव एंड अफेक्शन दे रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं इतना गिरा हुआ हूँ, मैं इतना नीच हूँ कि मैं डायरेक्ट भगवान के पास जा नहीं सकता, है ना। तो भगवान इसके थ्रू मेरे पास सप्लाई करें, क्योंकि भागवतम में एक जगह पे बताया है कि हमारे लिए कोई जीवात्मा या कोई भी व्यक्ति तभी तक स्पेशल होता है जब तक उसके अंदर प्राण है, जब तक उसके अंदर प्राण शक्ति है। जैसे आत्मा निकल गया, कोई हमारे लिए प्रिय होगा क्या? जैसे कोई माता जी कितने ही सुंदर क्यों ना हो, है ना, अगर उनके यहाँ से प्राण निकल जाए, है ना, और आत्मा निकल जाए, परमात्मा निकल जाए, है ना, तो परमात्मा निकलने के बाद कुछ नहीं, है ना, वो शरीर से कौन प्यार करेगा, है ना, कुछ घंटों में वो सड़ने लग जाएगा। और असलियत तो ये होती है कि जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है, शरीर त्यागते ही साथ कुछ ही देर में लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका अंतिम संस्कार करो। तो व्यक्ति प्रिय तभी तक है जब तक उसके हृदय के अंदर परमात्मा है ना, क्योंकि और आत्मा भी है तो वो भी परमात्मा का अंश है। तो इसलिए परमात्मा और आत्मा के कारण, और इसमें मुख्यतः परमात्मा के कारण कोई भी व्यक्ति किसी का विशेष होता है ना। तो इसलिए अगर हमें कोई भी विशेष तभी लगता है ना, क्योंकि जब वो हमें अफेक्शन एंड लव एंड केयर दे रहा है, तो हमें सोचना है कि वो भगवान की वजह से दे रहा है ना। और अगर कोई हमें डांट भी रहा है, गाली भी दे रहा है, तो उसको भी भगवत इच्छा समझ करके कि भगवान इसके थ्रू मेरे पास ये सप्लाई कर रहे हैं ताकि ये मेरे लिए अच्छा है, ताकि मैं आगे जा करके सही से भक्ति कर सकूं, और ये समझ सकूं कि संसार में मेरा कोई नहीं है ना। तो अगर कोई लव एंड अफेक्शन नहीं दे रहा तो वो भी भगवान की कृपा है कि अच्छा है, नहीं दे रहा,
है ना, ताकि मैं भगवान का भजन कर सकूं। और कोई दे रहा है, कहीं से मिल रहा है, माता पिता से या कोई मित्र आदि से, है ना, तो ये भी भगवान के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना वो भगवान के थ्रू होता है। इसलिए भगवान आश्रय तत्व भी है ना, और सभी जीवात्माओं को आश्रय प्रदान करते हैं, शेल्टर प्रदान करते हैं, और किसी का शेल्टर हम ले भी नहीं सकते। इसलिए एकमात्र भगवान ही आश्रय हैं। अगर और किसी का आश्रय लेंगे तो मरेंगे, है ना, और कोई आश्रय प्रदान करता भी नहीं, वो खुद आश्रय लिए हुए हैं। जैसे जितने भी देवी देवता है वो खुद भगवान कृष्ण का आश्रय लिए हुए हैं। तो इसलिए हम एकमात्र सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का आश्रय ले सकते हैं। फिर कहते हैं कि मैं धाता ही नहीं, मैं पितामह भी हूँ, है ना। मैं दादा दादी, मतलब पितामह मतलब दादा होता है, दादा पर दादा, है ना, मैं पितामह भी हूँ। अब कोई सोच सकता है कि माता पिता बोल दिया था, अब पितामह अब कहने की क्या जरूरत है अलग से, है ना। एक एक बार में समझ आ गया हमें कि आप माता पिता हो और माता पिता के रूप में सब पालन करते हो। आप ग्रैंडफादर क्यों बनना चाहते हो, है ना, आप क्या बताना चाहते हो। तो तत्व की दृष्टि से यही बात है ना कि भगवान प्रपितामह है, और भगवान पिता के पिता है ना, द सीड गिविंग फादर। और जितने भी पिता इस संसार में उन सबके, है ना, पिता है भगवान। लेकिन जैसे इस संसार में देखते हैं, है ना, कि कभी कभार जो माता पिता होते हैं वो बच्चे को इतना समय नहीं दे पाते, है ना, और कई बार जो बच्चा है वो भी माता पिता, है ना, उसको कई बार डांट देते हैं कि क्या कर रहे हो, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर नाना नानी या दादा दादी के पास जाता है, और फिर वो उसको थोड़ा प्रेम प्रदान करते हैं। अरे कोई बात नहीं, है ना, क्या बोल दिया मम्मी ने, है ना, ऐसे बोल दिया, कोई बात नहीं, है ना, ये लो, है ना, टॉफी खाओ, है ना, ये लो लॉलीपॉप खाओ। तो इसी प्रकार से भगवान भी, है ना, आप कोई बोले नहीं 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 आप माता पिता हो, है ना, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि माता पिता तो बहुत डांटते हैं। तो भगवान बोलते ठीक है, प्रपितामह भी मैं ही हूँ, है ना, पितामह भी मैं ही हूँ। तो अगर माता पिता स्नेह नहीं कर रहे तो भगवान दादा दादी बनकर, नाना नानी बनकर स्नेह करके ध्यान रखते हैं। और ऐसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि शिला प्रभुपाद भी ये चीज़ बताते हैं, है ना, कि अपने डिसाइपल्स को शिला प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि मैं आपका गुरु हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको डांट लगाऊं, है ना। एक गुरु कभी भी अगर अपने शिष्य को अप्रिशिएट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है ना। तो मतलब अगर अप्रिशिएट करते हैं तो वी कैन टेक इट, है ना, एंड उसको गुरु परंपरा को हम क्रेडिट दे सकते हैं, क्योंकि वो एप्रिसिएशन हमारा नहीं है। और गुरु हमारा टेस्ट भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन एज पर, है ना, वैदिक ट्रेडिशन, है ना, इट्स नॉट वेरी गुड कि गुरु हमें अप्रिशिएट करे, है ना। तो क्योंकि उससे हम पफ्ड अप हो सकते हैं और सर पे चढ़ सकते हैं। तो इसलिए माता पिता और गुरु, है ना, इनको कभी भी अपने शिष्य को या पुत्र को अप्रिशिएट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, है ना, वरना वो पफ्ड अप हो सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद ये कहते हैं कि मैं आपका गुरु हूँ, तो मेरा काम है कि मैं आपको डांट लगाऊं और बार बार आपको ठीक करूं। लेकिन आप शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके दादाजी हैं, दादा गुरु है। तो वो आपको निश्चित ही बहुत प्रेम एंड अफेक्शन प्रदान करेंगे। तो मैं भी यही सोच रहा था कि आप में से कुछ डिवोटी सेकंड जनरेशन में भी हैं ना, जो शिला जय पताका महाराज से और अन्य अन्य महाराज से एस्पायरिंग है, लेकिन कुछ थर्ड जनरेशन में भी। तो जो भी है ना, हमारे लिए तो शिला प्रभुपाद भी दादा गुरुजी या पर दादा गुरुजी, और फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तो उनसे भी ऊपर आएंगे। और फिर ऊपर पूरी 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 गुरु परंपरा, है ना, शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, है ना, क्योंकि महाराज जी कह रहे थे कि हम नरोत्तम परिवार के अंदर आते हैं, है ना। और अगर शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के भजन इत्यादि को हम पढ़े तो उसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है ना। तो हमारे लिए सब जानना ज़रूरी है। तो भगवान यहाँ अपने बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमें भक्तों के बारे में भी डिस्कशन करना इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर मैं आपको ये पूरे कन्विक्शन के साथ, है ना, एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि अगर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप शिला प्रभुपाद के पास जाइए, है ना। उनके प्रणाम मंत्र में इतनी शक्ति है, और बस उनका प्रणाम मंत्र कह करके, है ना, आप एक बार उनसे प्रार्थना करके तो देखिए, है ना। जैसे कई बार काफ़ी डिवोटीज कहते हैं कि सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो हालांकि ये भी है कि रात को जल्दी सोना पड़ेगा, है ना, और रात को फ़ोन छोड़ना पड़ेगा सोने से पहले। लेकिन इसके साथ साथ, है ना, आप एक और चीज़ करके देख सकते हैं कि आप शिला प्रभुपाद के पास जाइए और उनसे प्रणाम मंत्र कह करके प्रार्थना करिए, है ना, दंडवत प्रणाम करिए, है ना। और ये प्रणाम करने की बहुत महिमा है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बता रहा हूँ। कुंती महारानी भागवतम में क्या बोलती है भगवान से, नमः पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने, है ना। तो कितनी बार वो नमः 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 कह के भगवान को नमस्कार करती हैं, है ना। तो इसी प्रकार भगवान को अगर शिला प्रभुपाद को हम प्रणाम करें और झुक करके प्रणाम करें तो इसकी अत्यंत महिमा है ना।
शिला सनातन गोस्वामी से हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, 2000 बार भक्तों को प्रणाम करते थे। तो ऐसे प्रणाम करके अगर हम बोले कि शिला प्रभुपाद मेरे बस की नहीं है ना, मैं पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप मुझे सुबह जल्दी उठा दीजिएगा ताकि मैं आप कृष्णा का भजन कर सकूँ, ताकि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूँ। एंड फिर देखिए मैजिक, है ना। लेकिन और भी चीज़ें जो है ना, उसके लिए करना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ बोलने से हो जाएगा, है ना। अपनी तरफ से हमें अपना बेस्ट देना है, लेकिन जहाँ उसके बाद भी बात ना बने तो प्रार्थना में शक्ति है ना। एंड प्रेयर्स में बहुत बहुत शक्ति है, तो आप करके तो देखिए, है ना। इसलिए शिला प्रभुपाद हमारे लिए स्पिरिचुअल ग्रैंड फादर हैं, है ना। तो उनसे हम प्रार्थना करें ताकि वो हमें भक्ति में आश्रय प्रदान करें, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं पितामह भी हूँ। पितामह बन के भगवान ध्यान रखते हैं। फिर कहते हैं कितनी चीज हो गई, पिता, माता, धाता और पितामह, 4। अब 5वें पे चलते हैं। भगवान कहते हैं कि वेद्यम, है ना, मैं ज्ञेय हूँ। ज्ञेय का मतलब होता है जो जानने योग्य है, जैसे अभी आगे 13वें अध्याय में भी आएगा, है ना। तो प्रकृति, पुरुष, चेतना, है ना। और तो भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञेय हूँ, यानी कि जानने योग्य हूँ। तो अगर हम इसको तत्व की दृष्टि से देखें सबसे पहले, है ना, तो भगवान के अलावा और कोई जानने योग्य नहीं है। जैसे अभी नारायण प्रभु और हार्दिक प्रभु बता रहे थे कि वेदेश्च सर्वमहमेव वेद्यः, कि वेदों का लक्ष्य पर्पस मुझे जानना है। और आगे भगवान बता भी रहे हैं कि 3 वेद मैं हूँ, है ना। तो वेदों का पर्पस मुझे जानना है। और भगवत गीता साक्षात भगवत वाणी है, उसमें भी भगवान जगह जगह पर बताते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, एक ही श्लोक 2 बार और 4 चीजें, है ना, कि मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। तो ये 4 चीजें करो। तो तत्व की दृष्टि से भी भगवान ही जानने योग्य है, उनके अलावा और कोई जानने योग्य नहीं, क्योंकि भगवान को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, है ना। अगर कोई भगवान के नाम को भी, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, माता देवहूति बता रहे थे कि अगर कोई आधा नाम भी ले लेता है, कोई चंडाल कुत्ते का मांस खाने वाला भगवान का पार्शियल नाम भी ले लेता है, तो वो इतना पवित्र हो जाता है कि वो याज्ञिक ब्राह्मण बन जाता है ना। और ऐसे अनेक अनेक श्रीमद् भागवतम में हम जगाई मधाई के केस में देख सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने उनका किस प्रकार उद्धार किया। और नित्यानंद प्रभु ने तो सिर्फ 2 जगाई मधाई का उद्धार किया था, शिला प्रभुपाद ने न जाने कितने जगाई मधाइयों का उद्धार किया है ना। पाश्चात्य जगत में जा करके, जहाँ लोग खुद, है ना, वहाँ पे भी नित्यानंद प्रभु की तरह ही शिला प्रभुपाद के मुख पर सिगरेट का धुआं छोड़ते थे, है ना, न जाने क्या क्या करते थे, लेकिन शिला प्रभुपाद ने उन सब हिप्पीज को हैप्पीज में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो इसलिए अगर कृष्ण को जान लेंगे, अगर उनका हरिनाम पकड़ लेंगे, तो सब कुछ जान जाते हैं। तो तत्व की दृष्टि से भी ये सत्य है ना, कि अगर कृष्ण को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। और कृष्ण को नहीं जाना तो क्या जाना। जैसे वो अमरेंद्र प्रभु जी बड़ा अच्छा बताते हैं ना कि नो कृष्णा, क्या था, मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, बट अमरेंद्र प्रभु जी भी ऐसे कुछ बता रहे थे, है ना। तो इसलिए अगर कृष्ण को नहीं जाना तो क्या ही जाना, है ना। अगर बहुत सारे वेद इत्यादि उपनिषद आदि पढ़ भी लिया और अनेक श्लोक कंठस्थ कर लिया और उससे पफ्ड अप हो गए कि मुझे कितने श्लोक आदि आते हैं, लेकिन अगर भगवान ही प्रसन्न नहीं हुए, जो कि अल्टीमेट पर्पस था वेदों को जानने का, पढ़ने का, तो बस समय की बर्बादी है। क्या किया फिर वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ पढ़ के, जब उससे भगवान ही प्रसन्न नहीं हुए। तो इसलिए भगवत प्रसन्नता, है ना, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना। धर्म क्या है? भगवान की प्रसन्नता, है ना, भगवान को सर्व करना, भजन्ते अनन्य मनसः, है ना। तो इसलिए भगवान को भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम भी जानाति, है ना। तो इसलिए भगवान ही जानने योग्य है। और अगर हम इसको, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, कि हमें भगवत गीता के श्लोकों को इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि भगवान मुझे अपने पास वापस बुलाना चाहते हैं, भगवान चाहते कि मैं वापस उनके पास बैक टू गॉडहेड जाऊं, है ना। तो हम इसको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि भगवान हमें बताना चाह रहे कि मैं तुम्हारा, क्योंकि भगवान ही अगले श्लोक में बोलेंगे, है ना, ये भी मैं हवा में नहीं बोल रहा, भगवान अगले श्लोक में बोलेंगे कि निवासः शरणम सुहृता, है ना। तो हम एडवांस में थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। तो सुहृत भगवान 5वें अध्याय में भी बोलते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, है ना। तो भगवान सभी के बेस्ट फ्रेंड भी है। और जैसा अगले श्लोक में भी भगवान यही बताएंगे, शरणम सुहृत, कि मैं सभी का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो इसलिए भगवान हमें यह बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा सबसे क्लोज फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो तुम और क्यों किसी और को जानना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या काफ़ी नहीं हूँ? है ना, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, क्यों तुम्हें कोई और मित्र चाहिए? क्यों तुम्हें गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ये फ्रेंड, वो फ्रेंड चाहिए, है ना? क्यों तुम्हें इधर उधर की वस्तु, व्यक्ति चाहिए, है ना? तो इसलिए भगवान ही जानने योग्य है। तो इसलिए अगर भगवान को जान लेंगे, तो जैसे आजकल इस जगत में
एक टर्म है ना, कुछ लोग कहते हैं कि आई एम वन वुमेन मैन या वन मैन वुमेन, है ना। वन वन वुमेन मैन का मतलब है कि मैं सिर्फ एक ही स्त्री को लॉयल हूँ, है ना, जो मेरी वाइफ है, और मुझे सिर्फ उनसे मतलब है, बाकी लोगों से मतलब नहीं। या फिर ऐसी वाइफ बोले कि, है ना, पतिव्रता हो कि मैं सिर्फ अपने पति से मुझे मतलब है, बाकी लोगों से मतलब नहीं। तो हम भी वैसे अपने कृष्ण के लिए, है ना, जो कि हमारे लिए, है ना, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र, है ना, तो ऐसे गौर चंद्र के लिए हम भी लॉयल बने कि हम सिर्फ उन्हीं के हों। तो इसलिए हम भी सिर्फ उन्हीं के बारे में जाने, बाकी लोगों के बारे में जान कर भी हम क्या करेंगे, है ना, जानने से मानने से, है ना, क्या होगा। तो इसलिए सिर्फ भगवान जानने योग्य है। और फिर कहते हैं कि पवित्रम, है ना, मैं शुद्धि करता भी हूँ। तो निश्चित रूप से भगवान ही एकमात्र अल्टीमेट शुद्धि करता है, क्योंकि हम चाहे कितना ही स्नान इत्यादि कर लें, कितना ही बार हम गंगा में डूबे रहे, है ना, जैसे काफ़ी लोगों को लगता है सिर्फ तीर्थ यात्रा जाने से और हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान करने से, या अभी क्या था, महाकुंभ, है ना, महाकुंभ में जाके स्नान करने से हमारे सभी पाप हट जाएंगे, है ना। और कई लोगों को बुरा भी लग रहा था, "हाँ, प्रभु जी, हम महाकुंभ में नहीं जा पाए, हमारे पापों का क्या होगा", है ना। भगवान ने ऐसा कहीं बोला है क्या 18वें अध्याय में कि जो महाकुंभ में स्नान करता है मैं उसके सभी पाप मिटा देता हूँ, है ना। भगवान ने बोला है कि मेरी शरण में आओ बाबा, है ना। तो निश्चित रूप से ऐसा पुराण आदि में वर्णन है कि तीर्थ स्थान बहुत पोटेंट होते हैं, और ऐसे वहाँ पे स्नान करने से काफ़ी ऑस्पिशियस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पाप हट जाएंगे और आप अल्टीमेट गोल प्राप्त कर लोगे, है ना, ऐसा नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के अंदर बताया गया है कि जो लोग भगवान के भक्तों की शरण नहीं लेते और सिर्फ तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं ये सोच करके कि हमारे पाप मिट जाएंगे, ऐसे लोग गधे घोड़ों से, गधे और बैलों से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, उन्हीं के समान है ये लोग, है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस तीर्थ यात्रा पे जाने से हो जाएगा। जब पहले स्कंद भागवतम के अंदर बताया कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने और जितनी भी पूरी सभा थी वहां पे श्रीमद् भागवतम सुनाने आए थे, तब वहां पे ये वर्णन आता है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वहां पर थे इसलिए वो स्थान असली में तीर्थ स्थान कहलाया जाता है, नहीं तो वो तीर्थ स्थान नहीं है ना। इसलिए जितने भी बड़े बड़े ये ऋषि मुनि होते, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, ये जब जहां पर जाते वो तीर्थ स्थान बन जाता है। इसलिए अगर शिला प्रभुपाद अमेरिका भी जाते हैं तो वो भी तीर्थ स्थान बन जाता है ना। इसलिए वहाँ न्यू वृंदावन, न्यू मायापुर, है ना, वहां पर है। तो क्योंकि तीर्थ स्थान भले ही हाँ कुरुक्षेत्र वगैरह जो जो जहाँ जहाँ ऐसे भगवान ने लीलाएं करी हैं वो निश्चित रूप से तीर्थ स्थान है, लेकिन जहाँ जहाँ भगवान के भक्त जाते हैं वो हम जैसे जीव आत्माओं के लिए निश्चित रूप से बड़ा तीर्थ स्थान बन जाता है ना। क्योंकि सिर्फ तीर्थ स्थान जाने मात्र से कलयुग में हमारा उद्धार नहीं हो सकता। वहां जाके कुछ पता नहीं है, अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर बना है ना, राम मेरे घर आए हैं, है ना, जो भी वो गाना है, तो वहां जाकर क्या कर रहे हैं, अयोध्या में जाके राम लला के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, है ना, मतलब वहां तो फोन नहीं ले जा सकते, अयोध्या मंदिर के बाहर से फोटो खिंचा रहे हैं और सबको बता रहे राम लला तो बड़े सुंदर थे। अच्छा, और आपने क्या किया अयोध्या में? बस फिर हम थोड़ा 2-2 मिनट गए थे, सब जगह हनुमानगढ़ी गए थे और अयोध्या में दर्शन किए थे, उसके बाद थोड़ी चाय की चुस्की भी मार ली थी, है ना, और उसके बाद थोड़े पकोड़े वगैरह शकोड़े भी हो गए थे, है ना, और बढ़िया से एकदम 5 स्टार होटल था, वहाँ स्लीप वेल मैट्रेसेस में 6-7 घंटे सो भी गए थे, फिर स्नान आदि करके इधर उधर की थोड़ी बातें भी कर ली थी, है ना। तो जब तक वो भगवत चर्चा नहीं होगी, भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, तब तक ये तीर्थ स्थान में जाना किसी काम का नहीं। इसलिए चाहे कोई कितना भी नहा ले, चाहे नदियों में, अब जैसे जो मछलियां हैं वो तो नदी में ही रहते हैं, वो तो गंगा नदी यमुना नदी में मछली, है ना, और जितने भी जीव के प्राणी हैं, सॉरी जल के प्राणी हैं, तो वो सारे तो नदी में ही रहते हैं, तो उनको तो 2 मिनट में भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, वो क्यों नहीं कर पा रहे, है ना। इसलिए जो यमुना गंगा आदि के अंदर ये जो मछलियाँ वगैरह भी है ना, वो तो वहीं पे रहते हैं, तो उनकी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो ज़्यादा बड़ा, है ना, महत्व है वो है भगवत संगति का, है ना। अगर भगवत संगति हमें जिस भी जगह पे प्राप्त हो जाए वही हमारे लिए तीर्थ स्थान बन जाता है। जैसे एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एक जगह पे कथा कर रहे थे, तो वहाँ पे कई सारे लोग एक तीर्थ स्थान के पास थे ना, कथा चल रही थी, तो वहाँ पे कई सारे लोग कथा छोड़ करके और भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद यही बताते हैं, है ना, कि भगवान का दर्शन सुन करके होता है, कर्ण इंद्रियों से, है ना, ये नहीं कि सिर्फ आरती घुमा लेने से, अगरबत्ती घुमा लेने से, है ना, और सिर्फ भगवान का दर्शन करने मात्र से ये सब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर हमें भगवान का
श्रवण करने का मौका मिल रहा है, तो इवन हम लोग इस सब को क्या कहते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं, या फिर हम इस सब की जगह प्रायोरिटी हियरिंग को देनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्रवण से प्राप्त होते हैं। भगवान ऐसे ऐसे आंखों से दर्शन करने मात्र से या उनके सामने अगरबत्ती घुमाने से इससे भगवान प्राप्त नहीं होंगे, है ना। वो तो एक अंग है जिससे हम भगवान को सर्व कर सकते हैं, तो भक्ति का अंग है, लेकिन सिर्फ ऐसा करने मात्र से नहीं होगा ना। श्रवण तो हमें भगवत संगति में करना ही पड़ेगा। जैसे कई बार हम डिस्कस भी करते हैं कि हम वृंदावन बरसाना आदि भी जाते हैं, तो वहाँ निश्चित रूप से भगवान के दर्शन करते हैं, पर इससे बड़ा जो हमारा गोल होता है वो होता है भगवत संगति में भक्तों से श्रवण करना, है ना। इसलिए चाहे कई बार भगवान की आरती क्यों ना मिस करनी पड़े, अब जैसे आरती और क्लास एक ही टाइम पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली वी विल गिव प्रायोरिटी टू द क्लास, है ना। तो इस प्रकार से जो भी श्रवण, है ना, और भगवत संगति अगर मिल जाए तो भगवत संगति का ज़्यादा महत्व है ना। इसलिए शुद्धिकर्ता भगवान है, क्योंकि ये सब पानी में पड़े रहने से शुद्धि नहीं आएगी, है ना। शुद्धिकर्ता भगवान है और भगवान का नाम शुद्धि प्रदान करता है। तो अगर हम भगवान के नाम को पकड़ ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निश्चित रूप से चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, चित्त रूपी जो हमारा शीशा है उसका मार्जन कर देते हैं ना। तो इसलिए भगवान ही शुद्धि करता है, और प्योरिटी इज द फोर्स, है ना। अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो प्योरिटी अपने आप धीरे धीरे अंदर आ जाती है। फिर कहते हैं कि मैं इतना ही नहीं, मैं ओमकार भी हूँ। तो इस जगत में जितनी भी दिव्य ध्वनि है वो भी भगवान है ना। और जितने भी शब्द इत्यादि सब कुछ जो निकलता है वो ओमकार से निकलता है। तो अगर ये नहीं होता तो हम कितने ज़्यादा भगवान के ऊपर आश्रित हैं, है ना। स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ पाते, कुछ पढ़ाई नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते अगर ये ओमकार ना होता, क्योंकि सबका सोर्स ओमकार है, सबका सोर्स ओम है। इसलिए भगवान की वजह से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मैं ओमकार हूँ, है ना। और ये दिव्य ध्वनि है, और जितने भी बड़े बड़े वैदिक मंत्र होते हैं वो ओमकार से ही शुरू होते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। इवन जो तंत्र विद्या वगैरह भी करते हैं उसमें भी कई बार ये सब आता है ना। ओम साम ब्रीम ब्रूम ब्रीम आइसक्रीम कोल्ड क्रीम, है ना। तो जो भी है, तो इस प्रकार ओमकार की अत्यंत महत्व है। और लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु ने भी इस ओमकार को वैदिक मंत्रों के सार रूप में एक्सेप्ट किया है, लेकिन कलयुग में हम सिर्फ ओम बोल बोल के, कई लोग कहते भी है कि आप क्या हरे कृष्णा करते रहते हो। भगवत गीता में भगवान कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, है ना, कि मैं प्रणव हूँ, मैं ओम हूँ, तो आप क्यों हरे कृष्णा करते रहते हो। तो ये भी तो भगवान ने ही दिया है ना। इसलिए कलयुग में सिर्फ ओम कहने से हम भगवान के इस ओम तत्व को रियलाइज नहीं कर सकते, इसलिए भगवान हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, और इसमें और ओमकार में कोई फर्क नहीं है ना। और फिर कहते हैं कि ऋक् साम यजुरेव च। आप कोई बोलेंगे यहाँ पे अथर्ववेद क्यों नहीं बोला, 3 ही वेद क्यों बोले, क्योंकि जिस टाइम भगवान ये भगवत गीता अर्जुन को बता रहे थे तब तक वेद व्यास जी ने 3 ही वेद पहले थे, और उसके बाद चौथे की रचना कलयुग के लगभग, है ना, ट्रांजिशन फेज के आसपास करी थी अथर्ववेद की। तो तब तक 3 ही थे, ऐसा महाराज जी बता रहे थे, है ना। तो इसलिए भगवान ने 3 बोले, और लास्ट में च भी लगाई, यजुरेव च, है ना। हालांकि ये वैसे ऋक् साम और यजुरेव है, लेकिन महाराज कह रहे थे कि च मतलब इसमें अथर्ववेद भी काउंट हो गया, है ना, कि इसके अलावा जितने भी बचे हैं वो भी काउंट हो गए, है ना। और कई बार श्रीमद् भागवतम को पंचम वेद भी कहा जाता है ना, तो ऑब्वियसली वो भी काउंटेड है ना। तो इसलिए ऋक् साम यजुरेव च, है ना। तो मैं ये वेद भी हूँ, और इन सब वेदों का लक्ष्य मुझे जानना है, इसलिए जो ये ऋक् साम यजुरेव, है ना, ये सब जो वेद आदि पढ़ते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि जब तक वो मेरी प्राप्ति नहीं करते, जब तक भगवत प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं करते, तब तक क्या, है ना, क्या फ़ायदा, है ना। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें वेद इत्यादि का लक्ष्य है ना, भगवान की प्राप्ति। ये 8 चीज़ें भगवान बताते हैं किस प्रकार से भगवान माता है, पितामह है, भगवान आश्रय है, और भगवान शुद्धि करता है, ओमकार है। तो ये सबसे हम समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से भगवान पर आश्रित है, और हम ही नहीं, जितने भी लिविंग एंटिटीज़ है वो सब भगवान पर आश्रित हैं। नास्तिक भी भगवान पर आश्रित हैं, और वो स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन वो रहे तो उन्हीं की वजह से रहे हैं, है ना, भगवान की शक्ति की वजह से संचालित हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए जैसे कोई बच्चा हो, है ना, वो अपने माता पिता को पसंद ना करता हो, कोई बहुत अच्छे चरित्र का बच्चा ना हो, है ना, वो अपने माता पिता को गाली देता हो, है ना, कि ये तो ऐसे हैं, बुरे हैं, वैसे हैं,
है ना, लेकिन अपने माता पिता की ही रोजी रोटी पर पल रहा है ना, अपने माता पिता जो कमा के ला रहे हैं उसी खाना खा के जिंदा रह रहा है, तो वो कितने ही माता पिता को गाली दे लेकिन रह तो उन्हीं की वजह से रहा है। तो इसी प्रकार जो नास्तिक लोग हैं वो चाहे कितनी ही भगवान को गाली दे ले, वो रह तो उनका जो भरण पोषण हो रहा है वो भी भगवान की वजह से ही हो रहा है ना। जैसे लास्ट में बस मैं यही कह के ख़त्म करूँगा कि एक बार वैसे हमें कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार क्या था कि एक स्त्री थी, औरत थी, है ना, एक लेडी थी, माता जी, है ना, एक माता जी थे, तो उन वो क्या बोलते हैं, विधवा थे, है ना, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनके कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी गरीब थे, उनके पास कुछ खाने को नहीं था, लेकिन भगवान में पूर्ण श्रद्धा थी, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक बार उनके पास आया, व्यापारी, और कहने लगा कि आप बहुत गरीब हैं, मुझे आपके ऊपर तरस आ रहा है ना। तो वो माता जी कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, है ना, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। अब ये नास्तिक था, तो वो कहते हैं कि देखो मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस है, ये है वो है, पैसे हम खुद कमाते हैं, हम जो करते हैं मेहनत खुद करते हैं, भगवान कुछ नहीं करते, कोई भगवान वगैरह नहीं होता। तो वो माता जी कहती है कि कोई बात नहीं, है ना, लेकिन भगवान तो होते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है ना, देखते हैं कि भगवान आपका ध्यान रखते हैं कि नहीं। तो ये आदमी ऐसा कह के चले जाता है, चैलेंज करता है उन माता जी को कि भगवान आपका ध्यान रखते हैं कि नहीं। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद ये जो आदमी था, इसने अपने सर्वेंट से बोला, सेक्रेटरी से, कि राशन की दुकान पे जाओ और खूब सारा राशन लेके, दूध इत्यादि लेके, और उस माता जी के घर में बाहर रख के आ जाना, है ना। ये मत बताना कि तुमने दिया है, बेल मतलब बेल बजा के भाग जाना और ये सब रख के आ जाना। तो माता जी के घर के बाहर ये सब रख दिया। अब ये एक हफ्ते बाद ही बिजनेसमैन आया और कहता है कि तो कैसा लगा आपको राशन, है ना। तो माता जी कहती बहुत अच्छा था, है ना। तो कहते मैंने भेजा था, मैंने, है ना, देखा कोई भगवान नहीं होता। तो माता जी कहती हाँ ऐसा होता है कि कई बार ना भगवान बदमाशों को लगाते हैं, है ना, भक्तों की सेवा कराने में। तो मेरे पास तो आया ही है। देखो चैलेंज तो वो माता जी ही जीते, है ना, क्योंकि मतलब उनके पास तो अन आ गया ना, उनके पास तो सब कुछ आ गया। ऐसी हमारे पता नहीं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की कथा, या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की, है ना। कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एकादशी का व्रत रख रखा था उन्होंने। तो अब वो तो बाबा जी हैं, जंगल में रहते हैं, है ना, परिव्रजा का चार्य तो नहीं है कि प्रचार करेंगे। तो उनके एक शिष्य थे, वो भी उनके साथ रहते थे बाबा जी के साथ, है ना। तो उन्होंने बोला बाबा जी मुझे लगता है कि बहुत सुबह से भजन हो चुका है, अब थोड़ा दिन होने को चला है, तो कल हमें पारण करना है, तो मुझे लगता है कुछ भिक्षा मांग के लानी चाहिए, क्योंकि जो ऐसे बाबा जी या सन्यासीज होते हैं वो भिक्षा मांग करके अपना पालन पोषण करते हैं। कहते हैं आज पूरे दिन हम निर्जला फास्टिंग करेंगे, तो मुझे लगता है हमें कल के लिए कुछ जाके ले आना चाहिए ना, कुछ व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि हम पारण कर सकें। तो बाबा जी कहते हैं कि आप जाओ, है ना, मैं तो यहाँ पे भजन करूँगा, भगवान देंगे देना होगा तो कहते हैं कि बाबा जी वो आपकी बात ठीक है कि भगवान देंगे, लेकिन हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना बाबा जी। तो कहते हैं हाँ तो तुम जाओ ना, तुम करो। तो अब ये शिष्य जाते हैं, है ना, और भिक्षा मांगते हैं, कहीं से चावल, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, है ना, सब मांग करके और प्रसाद बनाते हैं। फिर सोचते हैं कि पहले गुरु जी को, बाबा जी को दे देना चाहिए, है ना, नहीं तो यही है ना, एक वैष्णवता है ना, कि पहले गुरु जी को दिया जाए, बाबा जी को दिया जाए। तो खूब सुंदर सी थाली सजाते हैं, उसमें सारा प्रसाद का आइटम्स भगवान को भोग लगा करके और उनके पास लेके जाते हैं। बाबा जी अभी भी हरिनाम ही कर रहे थे, है ना। तो फिर प्रसाद ऑनर करने के लिए, है ना, वो आते हैं। तो शिष्य कहते बाबा जी एक बात बोलूं, है ना। कहते कि देखिए जाना तो आखिरकार मुझे ही पड़ा, है ना, खाना बटोरने के लिए, भोग बटोरने के लिए, प्रसाद बटोरने के लिए। तो बाबा जी कहते कि तुम्हें जाना पड़ा, मुझे थोड़ी ना जाना पड़ा, मैं तो हरिनाम कर रहा था, मेरे पास तो प्रसाद अपने आप आ गया, तो तुम्हें जाना पड़ा। अब इसमें भी हमारा क्रिकेट माइंड हमें बोल सकता है ना, कि नहीं नहीं, है ना, ऐसे कैसे, ये तो जबरदस्ती वाली बात है ना। लेकिन उन्होंने तो मेहनत करी। लेकिन यहाँ पर फैक्ट, अब यहाँ पे ये भी मतलब नहीं है कि हम लोग खाली बैठ जाएं, क्योंकि हम बाबा जी नहीं है ना, और ना हम बन सकते, ना हम उन्हें इमिटेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सीखने वाली बात यहाँ से ये है कि जैसे भगवान हर चीज़ में बोलते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए पहली बात तो किसी चीज़ का अहंकार नहीं कि मैं कर रहा हूँ, और हमारा काम है सिर्फ ड्यूटी करना। जैसे अगर हमारी पढ़ाई लिखाई भी कुछ है तो इसलिए ताकि ये शरीर चल सके बस, है ना। उसके बाद लेकिन लालन पोषण वो तो भगवान ही करेंगे। अगर भगवान चाहे तो हमें अगर पैरालिसिस का अटैक हो जाए तो कर सकते हैं क्या जॉब इत्यादि, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी, है ना, नहीं कर सकते। तो इसलिए जब तक भगवत इच्छा है तब तक कार्य भी कर सकते हैं। जैसी भगवान की इच्छा हट गई
तो कोई कार्य भी नहीं कर सकते, चाहे उसमें कितना ही अपनी बुद्धि लगाएं, दिमाग लगाएं, हाथ पैर लगाएं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए निश्चित रूप से हमें अपना कर्तव्य करना है, जो भी हमारे लिए बॉडीली कर्तव्य है ना। लेकिन साथ ही ध्यान रखना है कि लालन पालन तो भगवान ही कर रहे हैं, है ना। तो जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, है ना। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। डिवोटीज थोड़े कम हो गए, मुझे लगता है थोड़ा बोरिंग हो गया क्या, है ना। सो किसी को कोई प्रश्न है या कमेंट है तो बोल सकते हैं। यस, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जी 2 क्वेश्चन थे। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि तो जी मेरे पास मतलब अशोकपात के नाम कोई फोटो है, डेट तो है ही नहीं, पहले क्लास से नहीं आस पास। रिलेटेड पूछिए, कोई क्लास से रिलेटेड है तो। नहीं प्रभु जी। नारायण प्रभु, आपका क्लास से रिलेटेड? हाँ प्रभु जी, क्लास से रिलेटेड कुछ। प्रभु जी जैसे ये वाले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं मैं ये सारे वेद हूँ, और वो वाला एक डाउट था कि 4वां वेद होता है वो क्यों नहीं कहा, तो आपने बता दिया।